Hello viewers, welcome back. So today we are about to start from the affections of urinary system. First affection is urolithiasis. Urolithiasis, it is common in case of castrated male. So it is more common in castrated male than females. So if the kidney stones or the urolithiasis are present in kidneys, it is termed as nephrolith. If they are present in ureter, it is ureterolith. If it is present in bladder, it is called as systolith. And if it is present in urethra, it is called as urethrolith. Important point एक और है that this Dalmatian breed of dog, urates are more common type of stones. Means the stones are mainly urates stones. However, in cats, calcium oxalates are more common. Means calcium oxalate stones are more common in cats, and in dogs, struvites are more common or are most common. So in dogs, struvites are more common, in cats, calcium oxalate type of stones. Next important thing is site of presence of urolithiasis. So in cattle, the site is distal to or distal sigmoid flexure of penis and ischial arc. In sheep and goat, it is urethral process. In buffalo, the site is neck of bladder and glans penis and sigmoid flexure all. In dog, the most common site is gutter of os penis. In pig, penile urethra and sigmoid flexure. In horse, it is urethra, and that too at the level of ischial arc. In camel, it is terminal part of urethra. सो ये साइट्स इंपॉर्टेंट है, साइट आपको याद रखना है. Some important points about urine is urine is acidic in canines, and canine की बात करें तो common stones are first cystine, oxalates, xanthin, hippuric acid,
uric acid, and urates. Alkaline urine, it is present in bovines. Their common stones are first struvite, second calcium carbonate, third calcium sulfate. स्ट्रूवाइट की बात कर लेते हैं. स्ट्रूवाइट्स आर मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट, है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज MAP. तो आपको याद रखना है दीज आर स्ट्रूवाइट. स्ट्रूवाइट का जो अपीयरेंस है वो इम्पोर्टेंट है. अपीयरेंस इज कॉफिन शेप्ड. सो स्ट्रूवाइट्स का बहुत फेमस अपीयरेंस है ये, कॉफिन शेप्ड अपीयरेंस. और हमने पहले याद कर लिया कि स्ट्रूवाइट्स डॉग्स में बहुत कॉमन है. कॉजेज ऑफ स्टोन्स. So causes, first is vitamin A deficiency, second is diet rich in phosphorus and magnesium, grains, ऐसे grains जिसमें है ना having low calcium and phosphorus ratio, means calcium is low, phosphorus is high. So in high grain diet, स्ट्रूवाइट्स are more common. और इफ़ रफेज है ना, हाई रफेजेस अगर खिला दिया जाए तो सिलिका. तो रफेजेस के सिलिका उससे भी स्टोन्स होते हैं. होता क्या है विटामिन ए डेफिशिएंसी में. सो ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी देयर इज de-squamation of epithelium. Means vitamin A is responsible for the integrity of the epithelial cells. So there will be desquamation of epithelium और यही एक्ट करेगा एज अ निडस. निडस यहीं पे कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं है ना विल गेट डिपॉजिट्स. ऐसे डॉग्स जिनको टोमेटो एंड स्पिनच ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, या डॉग्स विच आर गिवन टोमेटो एंड स्पिनच, ऐसे में ऑक्जिलेट स्टोन्स मिलते हैं, है ना, आर मोर कॉमन. सो डायग्नोसिस ऑफ यूरोलिथिसिस. फर्स्ट इज वाटर वैली. USG जब करेंगे अकाउस्टिक शैडोइंग, एक्सरे करते हैं अगर, तो इफ सिलिका स्टोन्स आर प्रेजेंट देन जो अपीयरेंस होगा है ना दे लुक लाइक जैक स्टोन. अब इन सब से होता क्या है, जनरली यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन विल बी देयर. अब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, हो सकता है वहाँ पे हिमेचूरिया भी आपको देखने को मिले, है ना. तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, हिमेचूरिया,
बहुत देर तक सेम यूरिनरी पोस्चर में ही हो, जो मेल्स है ना, वो फीमेल जैसा है उस तरीके से भी यूरिनेशन करता हुआ मिले, बिकॉज ये जो है ये सब लीड्स टू सिस्टाइटिस ऑल्सो, अगर वो ब्लैडर में है तो यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि इन ड्यूरिंग या इन यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन डायूरेटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। Now another term is urethrostomy. यूरेथ्रोस्टोमी की बात करें तो इन बोवाइंस ischial, high ischial incision is preferred, but ischial और high ischial जनरली देते हैं, but pre-scrotal can also be given, और ये तब if obstruction is present in proximal part of sigmoid flexor. अनदर जो है इसके अलावा पोस्ट स्क्रोटल इंसिजन, ये कब होगा? इफ ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ सिग्मॉइड फ्लेक्सर। Another is ischial incision। जो ischial incision है, it will be given when obstruction is in neck of bladder। अब ये जो neck of bladder है, इसमें ischial incision भी हो सकता है, या इस्चियोरेक्टल या पैराएनल, सब उसी का नाम है ना। पैराएनल भी इंसिजन व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन इज इन द नेक ऑफ ब्लैडर। इन डॉग्स, बोवाइन्स की बात हो गई, डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो इन डॉग्स प्री स्क्रोटल इंसिजन व्हेन stone is at os penis, and a scrotal incision when there is recurrent stone formation। And another is perineal incision। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ इंसिजन देते हैं, ये ऑल और ये सब में आ जाता है, 1 only 2 only इस टाइप से। स्क्रोटल इंसिजन की बात करेंगे तो व्हेन एवर वी विल गो फॉर स्क्रोटल इंसिजन, सो जस्ट रिमेंबर दैट बिफोर स्क्रोटल इंसिजन कास्ट्रेशन इज डन। कैट्स की बात करेंगे तो कैट्स में पेरिनियल इंसिजन इज प्रेफर्ड। बस इतना याद रखना हमें। अब कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट इज नेफ्रेक्टोमी। इट इज एक्सीजन ऑफ किडनी। Another is nephrotomy।
it is incision on the kidney. Another is nephrostomy. So it is creation of fistula. Another is nephrospleotomy. So it is done to divert the urine when obstructive uropathy occurs. Another term is ureterotomy. It is incision on the ureter. Another is intramural ectopic ureter. So in intramural ectopic ureter bypasses the bladder, causes urinary incontinence. इसको मैं अलग से ना लास्ट में इसके समझा दूंगा. अनदर इज ectopic ureter. So it is abnormality of ureter. The ureter do not enter urinary bladder in correct anatomy. One term is ureteroneocystotomy. Ureteroneocystotomy. It is procedure of implantation of resected ureter in bladder. Another important term is CKD. It is chronic kidney diseases. It is a type of disease which makes structural as well as functional kidney डैमेज. ड्यूरेशन की बात करें क्रॉनिक या फिर इस डैमेज की बात करें तो ग्रेटर देन 3 months ऑफ ड्यूरेशन. और ये जो 3 months का ड्यूरेशन है इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 50% रिडक्शन इन GFR फॉर 3 months. अगर ऐसा हो जाए कि या तो 3 महीने से ज़्यादा से बीमारी हो या फिर 50% रिडक्शन हो जाए GFR का और ये लगातार 3 महीने तक रह जाए तो अपन कंसीडर कर लेंगे दिस इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीजेस. टर्म इज रीनल फेल्योर. It is a stage when 75% of nephron in both the kidney stops functioning. So it is termed as renal failure. Another term is CRF. It is chronic renal
failure. So patient having CKD, chronic kidney diseases with clinical sign, जिसमें CKD है और क्लिनिकल साइन भी आ चुका है, उसको बोल देंगे CRF। और द चेंजेस इन नेफ्रॉन आर इरिवर्सिबल। Similarly, the acute one, acute renal failure. So acute renal failure, it is abrupt decline in renal function due to, it may occur due to poisoning or the infection also. नाउ कमिंग टू द सर्जिकल प्रोसीजर, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो जो सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे ये एनिमल है, दिस वन इज स्क्रोटम, है ना, ये टेल है ऐसा। सो द इंसीजन, जिसकी अपन बात कर रहे थे इससे पहले, दिस वन इज इस्चियल इंसीजन। इससे आगे जो है ये, दिस इज सबइस्चियल, एंड जस्ट near to the scrotum it is post scrotal incision। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और जो दूसरा ट्रीटमेंट था, जैसे शीप और गोट का ट्रीटमेंट है, तो इसमें यूरेथ्रल प्रोसेस एम्पुटेशन कर दें। सो यूरेथ्रल प्रोसेस एम्पुटेशन इज डन इन शीप एंड गोट। उससे भी नहीं होगा तो बाद में तो ट्यूब सिस्टोस्टमी है, तो वो किया जाएगा, ट्यूब सिस्टोस्टमी, है ना। ये स्टोमी है, इसमें जैसा हमने पहले बात किया है कि वहाँ पे इंसीजन से फिस्टुला बनाया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके थ्रू एक ट्यूब निकाला जाएगा। नाम याद बस रहना चाहिए। वैसे यूरेथ्रल प्रोसेस एम्पुटेशन से भी हो जाएगा काम, और सीवियर रहेगा तो फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। जो एक्टोपिक यूरेटर की बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। एक्टोपिक यूरेटर ये बहुत कॉमन है डॉग्स में, बहुत कॉमन है डॉग्स में, मतलब केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बाकी स्पीसीज से ज़्यादा डॉग्स में देखे जाते हैं। ये दो तरीके का है। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा लुमिनल, सो वन इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। अनदर इज इंट्राल्यूमिनल, या इसी को बोलते हैं इंट्रा म्यूरल। जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है, अभी हमने बात किया था कि इसमें ये जो ब्लैडर है, एक यूरेटर यहाँ है, और ये जो यूरेटर है ये कम्प्लीटली बाईपासेस द ब्लैडर का ये मतलब है कि ये कम्प्लीटली बाईपास कर लेता है। तो यहाँ आप लिख लेना कम्प्लीटली बाईपासेस द ब्लैडर। सो यहाँ अपन को देखने को मिलेगा ना डबल यूरेटर ओपनिंग। सो डबल यूरेटर ओपनिंग
कैन बी सीन। इसकी बात करें इंट्राम्यूरल वाले की, तो इसमें जो ब्लैडर है, एक तो यहाँ पे है, ये जो है यहाँ दिखेगा ज़रूर बट ये अंदर से इंटैक्ट होगा और ये एग्जिट होगा यहीं। सो द कोर्स इज सबम्यूकोसली, it do not open in bladder even after proper entry। सही एंट्री होने के बाद भी ये एग्जिट नहीं करेगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये आपको याद रखना है ना। दोनों का अलग ट्रीटमेंट है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दोनों में से किसका ट्रीटमेंट क्या है। सो जो एक्स्ट्रा म्यूरल है ना, इसका ट्रीटमेंट है यूरेटरो नियोस्टोमी। इसमें यूरेटर पहले है, नियो बाद में है। लेकिन जो इंट्राम्यूरल वाला है इसका है ट्रीटमेंट नियो यूरेटरो स्टोमी। अब ये कैसे भी आपको याद होना चाहिए, एक में नियो पहले है, एक में नियो बाद में है ना। यूरेट्रो पहले है। कौन एक्स्ट्रा म्यूरल है, कौन इंट्राम्यूरल है, दो। सो दिस वन इज फॉर एक्स्ट्राम्यूरल एक्टोपिक यूरेटर एंड दिस वन इज फॉर इंट्राम्यूरल, है ना। सो दिस वन इज जनरली डन फॉर इंट्राम्यूरल। Another term is cystography. So cystography is suturing of ruptured urinary bladder। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है अफेक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इतना बहुत होगा। कमिंग टू द सर्जिकल अफेक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वैसे तो फीमेल वाला सब गायनी में पढ़ा दिया जाता है, बट फिर भी हल्का सा जस्ट एक दो डिजीज़ को अपन यहाँ देख लेंगे। फर्स्ट इज़ वजाइनल प्रोलैप्स और एंड यूट्राइन प्रोलैप्स। तो इसके जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसमें रोप ट्रस, बस नाम याद कर लेना आप, है ना। मॉडिफाइड कैसलिक ऑपरेशन, similarly modified quill technique, shoeless suture, Bohner technique, AG tech button suture, Flesa suture। ये सब यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल प्रोलैप्स या यूट्राइन प्रोलैप्स। अनदर इज यूट्राइन टॉर्सन। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो कास्ट द डैम ऑन साइड ऑफ टॉर्सन एंड देन रोल ऑन द सेम साइड ऑफ टॉर्सन। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेम साइड में कास्ट करना है, सेम साइड में ही रोल करना है। इम्पॉर्टेंट इज OH, ओवेरियो
हिस्टेरेक्टोमी। अप्रोच की बात करें तो फर्स्ट इज फ्लैंक अप्रोच। यही जनरली किया जाता है, सो इट इज जनरली डन। फ्लैंक अप्रोच की बात करें तो इन दिस एब्डोमिनल सीलियोटोमी is done. Second is vaginal approach. और vaginal approach में colpotomy is done. And third is linea alba approach. एंड इन लीनियर अल्बा अप्रोच अम्बलाइकस से इंसिजन देंगे, सो इंसिजन फ्रॉम अम्बलाइकस एंड एक्सटेंडिंग अप टू 6 to 8 सेंटीमीटर कॉर्डल टू अम्बलाइकस। एज की बात करें तो जो गुड एज है फॉर OH इट इज़ 6 to 8 months, है ना। जब बीच का एज 6 to 8 मंथ हो जाए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज अवॉइड OH ड्यूरिंग हीट एंड प्रेगनेंसी। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे की बात करें तो इतना ही याद रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके बाद GIT और एक छोटा सा GIT का एक अलग लेक्चर हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टू द ऑर्थोपेडिक्स। सो ऑल द बेस्ट।